D4 न्यूज देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति दो महिलाओं और एक बुजुर्ग को पीट रहा है। यह घटना अमृतसर के तरन तारण रोड स्थित मरब्बे वाली गली की बताई जा रही है और जो व्यक्ति महिला को पीट रहा है इसमें से एक उसकी पत्नी है। महिला की पहचान कृष्णा नगर निवासी हरसिमरन कौर के रूप में हुई है। युवक अपनी पैंट से एक तेजधार हथियार निकालता है और महिला पर हमला कर देता है। उसके साथ एक और महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी चल रहा होता है। जब वह इसे रोकने का प्रयास करते हैं तो युवक उन पर भी इस तेजधार हथियार से हमला करने लगता है। बचाव के लिए ये तीनों राहगीरों से मदद मांगते हैं लेकिन आगे आकर कोई भी युवक को पकड़ने का साहस नहीं करता है। इसके बाद हरसिमरन कौर महिला ये सामने आई है और उसने बताया कि उसके माता पिता और उसके पति नवदीप सिंह के बीच विवाद चल रहा है। नवदीप ने ही फोन करके हमें बुलाया था और उसने ही हम पर जानलेवा हमला किया है। इसकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मेरा हस्बैंड सी थर्ड पर्सन पार्टी नाल नवदीप सिंह ये थर्ड पर्सन पार्टी नाल मिलके ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਮਲਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਮਰੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨੇ 5 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਆ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਮੰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀ ਬਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਰ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕੋਈ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਬਸ ਆ MLR ਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 3 ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री के वेतन से ज्यादा कई पूर्व विधायकों को पेंशन दे दी गई है। इसका खुलासा एक पंजाबी अखबार में छपी खबर के दौरान हुआ। अधिकारियों की गलती से खजाने को 192 करोड़ रुपए का चूना लगा है। अफसरों की गड़बड़ी का खमियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि पूर्व विधायकों को 19,200 रुपए की जगह 75,150 रुपए पेंशन मिलती रही। इस तरह 5 साल के दौरान सरकारी खजाने में लगभग 192 करोड़ रुपए का चूना लग गया। पंजाब के कई पूर्व विधायक पेंशन के रूप में हर महीने मुख्यमंत्री के वेतन से अधिक राशि ले रहे थे। नियम के अनुसार विधायक को पहले कार्यकाल के लिए 75,000 रुपए और उसके बाद हर अन्य कार्यकाल के लिए 50,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। विधानसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक इस समय राज्य के 275 पूर्व विधायक अपने अलग अलग कार्यकाल के हिसाब से पेंशन ले रहे थे। इसमें राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 1 दर्जन पूर्व विधायक भी शामिल हैं जिन्हें कार्यकाल के हिसाब से 5-6 पेंशन मिल रही थी। आपको यह बता दें, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायकों की तमाम पेंशनें बंद कर दी हैं और यह घोषणा कर दी है कि एक विधायक एक पेंशन का सिस्टम पंजाब में लागू होगा। इससे अधिक किसी को पेंशन नहीं मिलेगी।
यह भी आपको बता देंगे, पंजाब में मुख्यमंत्री का मासिक वेतन तमाम भत्तों के समेत 1.5 लाख रुपए बनता है। वहीं प्रदेश के पूर्व विधायकों में 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल इस समय 11 पेंशन के हकदार थे। उन्हें पेंशन की कुल राशि 5,76,150 रुपए मिलती थी। हालांकि हाल ही में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पेंशन न लेने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह और परमिंदर सिंह ढींडसा समेत सूबे के कई पूर्व विधायक ऐसे हैं जिन्हें उनके कार्यकाल के हिसाब से 5-6 पेंशन मिलती रही हैं। इसकी कुल रकम 2,75,550 रुपए से 3,25,650 रुपए बनती है। पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य एक्ट 1977 और पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य एक्ट 1984 में संशोधन के साथ पंजाब एक्ट नंबर 30 ऑफ 2016 के साथ नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि पूर्व विधायकों उनके पहले कार्यकाल के लिए पेंशन के रूप में 15,000 रुपए और अगली प्रत्येक टर्म के लिए 10,000 रुपए से आगाज होगा। इस रकम के पहले 50% डीए मर्ज होगा और उसके बाद बनने वाली कुल रकम में फिर से 234% महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह पूर्व विधायकों को जबरदस्त लाभ हुआ। अगर बात करें कि पिछले 5 सालों में ही 186 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लग चुका है। मामला पंजाब सरकार के ध्यान में आ गया है और मामले की जांच की जा रही है और ऐसी चर्चा है कि जिन विधायकों को पैसे अधिक गए हैं उनसे इन पैसों की भरपाई की जाए। लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह भरपाई हो पाती है या नहीं। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान स्पष्ट कर चुके हैं किसी कीमत पर भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो दोषी ऑफिसर हैं उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी आने वाला समय ही बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी होगी या नहीं, इस पर भी चर्चा छिड़ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 1 MLA 1 पेंशन के फैसले का जनता की ओर से भरपूर स्वागत किया जा रहा है। वहीं इस निर्णय से जनप्रतिनिधि नाराज हो रहे हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह वैद ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। वहीं अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी ट्वीट करके खर्च गिनाए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने गठन के बाद लगातार नए ऐलान कर रही है। वहीं सरकार ने शुक्रवार को 1 MLA 1 पेंशन का ऐलान किया। अब इसके तहत MLA को एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार विधायक क्यों ना बना हो। इससे 5 सालों में पंजाब को करीब करीब 80 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। इन्हें सरकार आम लोगों की भलाई के लिए उपयोग करने का दावा कर रही है। जिन नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के तंज भी आने लगे हैं। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने साफ लिखा है यह सराहनीय कदम है, लेकिन MLA को चीफ सेक्रेटरी के बराबर वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके यह भी कहा सही तरह से ऑफिस चलाने के लिए स्टाफ, पेट्रोल आदि पर खर्च करना पड़ता है, यह बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ट्वीट के बाद लोगों ने सांसद औजला पर निशाना साधा और इसे रीअप्लाई किया जा रहा है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं कह रहा कि आप राजनीति में आओ, क्या आप अपने जॉब के रूप में इसे आपने ज्वाइन किया है? लोगों का यह भी कहना है कि पेंशन ऑफिस चलाने के लिए नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीने के लिए दी जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पंजाब में 1 MLA 1 पेंशन का फैसला लिए जाने के बाद एक और नया सवाल सामने आ गया है। वह यह है कि विधायकों का इनकम टैक्स कौन भरेगा। पिछली कांग्रेस सरकार 117 विधायकों में से 93 विधायकों का इनकम टैक्स भर रही थी। 4 वर्षों में करीब 3.25 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा गया। खास बात यह है कि इनमें आम आदमी पार्टी के भी 15 विधायक शामिल थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेंशन का फैसला सुना दिया, लेकिन विधायकों की कमाई का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से जमा करने जो किया जा रहा है उस पर फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह कांग्रेसी विधायकों व दूसरे नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर कपूरथला से विधायक नवतेज सिंह चीमा के निवास स्थान की है, जहां पर उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने लिखा है कि पंजाब की हक सच की लड़ाई
ईमानदारी से लड़ेंगे। सिद्धू ने एक दिन पहले भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बरगाड़ी कांड के आरोपियों को 24 घंटे में सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। सिद्धू ने इस वीडियो को टैग करके लिखा था, अब आपको कौन रोक रहा है। बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई, और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बरगाड़ी कांड के दोषियों को। पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर की गई पोस्ट को लेकर कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा और लिखा, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां, यानी जब काम करने का समय था तब आपने काम नहीं किया, अब फिजूल में टक्करें मार रहे हैं। देश भर में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। इसमें कांग्रेसी ड्रम बजाएंगे और घंटियां बजाएंगे। 31 मार्च से शुरू हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अभियान चलाने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह कैंपेन 31 मार्च से 7 अप्रैल तक 3 चरणों में चलेगा। यह जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने बीजेपी के ताली थाली की तर्ज पर ड्रम और घंटियां बजाकर करने का ऐलान किया है। सुरजेवाला ने कहा कि 7 अप्रैल को पार्टी सभी राज्य मुख्यालयों पर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च निकालेगी। महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च, ये दोनों चीजें वहां पर करेंगे हर जिला स्तर पर, ताकि सरकार के कान खोले जा सके। 7 अप्रैल को इसी प्रकार हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के लोग, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथी, वो सारे साथी जो जैसे रेलवे पैसेंजर्स यूनियन है, बस पैसेंजर्स यूनियन है, ऑटो यूनियंस हैं, इन सब के साथ मिलकर हम प्रांतीय स्तर पर हर स्टेट हेडक्वार्टर पर महंगाई मुक्त भारत मार्च और धरना, ये दोनों हम करेंगे, ताकि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार, वोट लेकर जनता को धोखा देने वाली सरकार, सुरसा जैसी, दैत्य जैसी महंगाई जो मुंह बाए खड़ी है, उसके आगे कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार, उसके कान और आंख दोनों खोले जा सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे थी, लेकिन पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार ने डीजल पर 531% और पेट्रोल पर 203% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने 8 साल में जनता की जेब से 26 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। यह कोई आरोप नहीं बल्कि सरकारी आंकड़ा है। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% बढ़ाई है। याद करिए, जब सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल $108 से $140 प्रति बैरल था, तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर।
अब फिर $108 प्रति बैरल पहली बार भाव हुआ है, तो पेट्रोल का दाम है 98 रुपया 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव है 89 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों आपकी जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। यह चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना खजाना भरा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सिसोदिया ने इसे रोजगार बजट बताया और कहा, दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। बजट में नगरीय निकाय को 6,154 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि बजट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों को काबू में किया जा सकेगा। ये बजट इनोवेटिव और बोल्ड है। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ़ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम हैं। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, उसमें बच्चे हैं। ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज़ करना है। 12% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है। तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई, ये जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है। इसमें हमने जब बजट में सजेशंस मांगे थे तो अलग अलग तरीके के सजेशंस आए थे। डिमांड्स कम सजेशंस कम एडवाइजेस बहुत कुछ आया था और इसमें लगभग एक सेंस ऑफ द सजेशंस आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं उसी में ये डिमांड थी कि हमें आप बजट बनाओ तो रोज़गार की बात करो, आप हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करो। कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है, तो अगर आज इस बजट का ओवरऑल सेंस आप कहें तो वहीं से निकला है। क्योंकि हम एजुकेशन पे, ग्रीन बजट और इन सब पे बात कर चुके, हेल्थ पे बात कर चुके थे। लोगों ने यही हमें कहा कि आप, और जो हमने पूरा रिटेल मार्केट को लेके जो पॉलिसीज़ बनाई हैं ये लोगों के बीच से ही निकल के आया। और उसके बाद हमने उन जो भी सजेशंस आए थे उनके बाद हमने उन सजेशंस के फर्दर सेक्टर्स पे पूरी स्टडी कराई। हम मार्केट के एसोसिएशन से हमारी टीम्स जाके मिली सजेशंस के बेस पे, अलग अलग गांधीनगर से लेके कमला नगर और जितने भी मार्केट्स दिल्ली में फेमस हैं
क्लाउड किचन के लोगों से हम लोग जाके मिले, उनके साथ में उनका पूरा स्ट्रक्चर समझा, उनकी प्रॉब्लम समझी, सरकार का इंटरवेंशन कहाँ चाहिए और वो कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आज बोला वो सजेशंस ही उसका आधार बने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब सरकारी बसों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगे ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पीआरटीसी और पनसब की बसों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली तक जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत ये मुद्दा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उठाएं। भाजपा ने यह भी कहा कि इस सेवा में देरी से पंजाब सरकार के हितों को नुकसान हो रहा है, वहीं पंजाब का आम आदमी और खासकर एनआरआई परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीआरटीसी और पनसब पर बैन की वजह से सिर्फ ट्रांसपोर्ट माफिया को फायदा हो रहा है। अब पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी ये बड़ी चुनौती हल क्यों नहीं कर रही है। आपको यह बता दें कि जब पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी और राजा वड़िंग जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी यह मुद्दा अरविंद केजरीवाल के समक्ष उठाया था। आए दिन पैसे के लालच में आकर कुछ ट्रैवल एजेंट बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमृतसर में भी सामने आया। बेरोजगार जो कि ट्रैवल एजेंट की ओर से ठगे गए थे, उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत की। इन बेरोजगार युवकों का आरोप है कि पुलिस में पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन युवकों ने पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਭਗਤ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਆ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ 75,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਖੱਜਰੋਹਾ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਏਜੰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 14 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਰੁੱਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੁੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਦਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ कि जल्दी ਤੋਂ जल्दी एक्सपीडाइट करके बनती कानूनी कार्रवाई ਜਿਹੜੀ अमल ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। थैंक यू। अमृतसर की पुलिस को भारी सफलता मिली है। छिहाटा इलाके में पुलिस ने 4 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसीपी वेस्ट तुषार गुप्ता ने दी और बताया कि ये युवक कई वारदातों में वांछित थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और मामले की जांच की जा रही है कि इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कहां-कहां वारदात की। आज अमृतसर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੇ और 8 राउंड भी बरामद हुए हैं। ये जो इन्हां दी गैंग हैगी जुझार सिंह हज़ारा, अली, गुरविंदर डोलू, नशत्तर काका, रोबा, लब्बा, करण, रंजीत सिंह गन और लल्ला, इन्हां दी गैंग जो हैगी ये 6 से ज़्यादा मुकदमियां विच इन्वॉल्व सीगी साडे एरिया विच, जिहदे अंदर 302 दे केस भी हैगे, 307 दे भी हैगे, लड़ाई झगड़े दे भी हैगे, नजायज़ असले दे भी केस हैगे। इन्हां दे विचों पिछले कुछ हफ्तियां विच असी रोबा, लब्बा और करण नूं फड़न च कामयाब सीगे। कल साडी थाना कैंट और थाना छिहाटा इन्हां दी टीम नूं बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिहदे विच असी इन्हां दे मेन गैंग लीडर हज़ारा, उहदे नाल अली, गुरविंदर डोलू और नशत्तर काका नूं भी फड़ लिया है। इस चीज़ इन्हां दे वख-वख परचियां विच अरेस्ट पै चुकी है। तफ्तीश असी आगे जारी रखी है। जो इन्हां दे 2 गैंग मैंबर और रह गए उन्होंने भी जल्द फड़िया जाएगा और इन्होंने भी जेल भेजा जाएगा। हुण तक इन्हां कोलों सानू एक 32 बोर पिस्टल, 6 राउंड, एक चोरी दा मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, उहदे 2 कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। सानू और वैपन्स की रिकवरी की उम्मीद हैगी। जिदा जिदा सामने आएगी उदा उदा असी उन्हां नूं परचे भी पाएंगे और तुहानूं इन्फॉर्म भी करांगे नाल ही। जो पिस्टल पकड़ी है आपने, ये अवैध रूप से है थी कि इनकी लाइसेंस ही थी, ये थोड़ा सा बताइए। ये जिदा मैं कह रहा सी तुहानूं, ये ओवर 6 केसेस विच इन्वॉल्व ने। इन्हां दे जायज़ लाइसेंसी पिस्टल नहीं बन सकते, ये नाजायज़ पिस्टल हैगे। ये कहाँ से लेके आए हैं, किन्ने दा लेके आए हैं, किहदे कोल उन्होंने बरामद किया है, सब चीज़ की तफ्तीश चल रही है। इन्हां नूं भी परचे छपा के इन्हां नूं भी इंसाफ दे विच ले आया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।